Hello friends, let us understand chapter 4 in the kingdom of fools of ninth क्लास। तो ये कक्षा 9 का लेसन 4 है सप्लीमेंट्री के अंतर्गत इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ऐसा किंगडम, ऐसा राज जहाँ पे सब लोग मूर्ख होते हैं। ए के रामानुजम की एक बहुत ही अद्भुत और मन को प्रफुल्लित करने वाली कहानी है। द स्टोरी हाईलाइट्स द डेंजर्स posed by the foolish people. It also emphasizes the view that foolish people like the king and his minister can be very difficult to manage. Fools live in their own paradise and can only be handled by wise people like the Guru. It is a story about a kingdom ruled by a foolish king and his foolish minister. They pass a strange order that is followed by the people. In the end, the wise Guru reverses the order and brings normally back into the kingdom with his wisdom. The story gives the message that foolish people are unpredictable and can be very dangerous, so one must stay away from them even if they offer benefits for sometimes. तो ये जो कहानी है मूर्ख लोगों द्वारा उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डालती है। यह इस दृष्टिकोण पर भी बल देती है कि राजा और उसके मंत्री जैसे मूर्ख लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। मूर्ख अपने ही स्वर्ग में रहते हैं और केवल गुरु जैसे बुद्धिमान लोगों द्वारा ही संभाले जा सकते हैं। यह एक मूर्ख राजा और उसके मूर्ख मंत्री द्वारा शासित एक राज्य के बारे में एक कहानी है। वे एक अजीब आदेश पारित करते हैं जिसका लोगों द्वारा पालन किया जाता है। बुद्धिमान गुरु ही अंत में आदेश को पलट देता है और अपनी बुद्धिमत्ता से राज में वापस सामान्य स्थिति लाता है। यह कहानी संदेश देती है कि मूर्ख लोग अप्रत्याशित होते हैं और बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए किसी को कुछ समय के लिए लाभ प्रदान करने पर भी मूर्खों से दूर रहना चाहिए। आपने कहानी पढ़ी होगी अंधेर नगरी चौपट राजा। इस प्रकार से हमें मूर्ख लोगों से बचना चाहिए और अपनी सही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। यही इस लेसन की थीम है। और इस लेसन के जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो एक राजा हैं, राजा का मंत्री है, एक गुरु है, एक शिष्य है, एक धनी व्यापारी है, एक मिस्त्री है जो मकान बनाता है, एक डांसिंग गर्ल या नर्तकी है और एक गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है। ये इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर हैं। तो अभी इस लेसन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे और इसके पहले मैं चाहूँगा कि इसके जो मीनिंग्स हैं, शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं, उन्हें बनाने का यहाँ पूरा समय देंगे और जब समय मिलेगा तो लेसन को एक्सप्लेन भी करेंगे। Till prepare and use land for growing crops. Disobeyed, went against। हिंदी लिखी तो आप देख सकते हैं, तो हिंदी नहीं पढ़ेंगे। Delighted, pleased, project, planet, piece of work, disciple, a follower of a teacher, steed, wagging, cattle, cows, bulls and oxen, wandered, moved about in an aimless way, grocery shops where food and small household goods are sold, astonishment, surprise, realized, to become fully aware of the fact, gave up, yielded, sneaked in, moved in secretly, collapsed,
fell down suddenly, was pursuing, was engaging in trade, business. Wrongdoer, a person who does something bad or illegal. Compensate, to make up for. Burgled, went into a building illegally for stealing. Accused, the person who is charged with for a crime. Bricklayer, it means mason. Executions, the death of penalty. Anklets, chains round the ankles. Jingling, ringing, ringing lightly. Complicated, complex. Distracted, to look attention away. Scoundrel, dishonest person. Evidence, information used to establish a fact. Culprit, a person responsible for the offense. Bailiffs, agents, inherited, received property from your father after he died. Decree, it means judgment. Scrap, a difficult situation. To dammer, to shout loudly. Solemn, deeply sincere. Word, promise. Ascetic, without pleasure and luxuries. Beforehand, in advance. Panicked, felt sudden fear. Persuade, use reasons to make agreed. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं, वाई डिड द गुरु डिसाइड टू लीव द किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु ने मूर्खों का राज छोड़ने का निर्णय क्यों किया, तो देख लेते हैं। द गुरु डिसाइडेड टू लीव द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही रियलाइज दैट इट वाज डेंजरस टू स्टे देयर एज द पीपल वर all fools and anything could happen at any time. He felt that they could harm him and his disciple. तो इसकी हिंदी भी यहाँ लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, वाई डिड द किंग ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन टू बी पोस्टपोन। राजा ने फांसी को स्थगित करने का आदेश क्यों दिया, तो द गुरु मेड अ फूल ऑफ द किंग बाई टेलिंग हिम दैट द न्यू स्टैक बिलोंग टू द गॉड ऑफ जस्टिस एंड द फर्स्ट पर्सन एग्जीक्यूटेड ऑन इट वुड बी द किंग इन हिज नेक्स्ट बर्थ एंड द सेकेंड पर्सन एग्जीक्यूटेड वुड बी द मिनिस्टर इन द नेक्स्ट बर्थ एज द किंग डिड नॉट वांट टू lost his kingdom even in his next birth. He postponed the execution so that he had time to think and take the advice of his minister. तो यहाँ भी इसकी आप हिंदी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज द गुरु एंड हिज डिसाइपल डिलाइटेड। गुरु और उसका शिष्य प्रसन्न क्यों थे, तो द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड व्हेन दे वेंट टू बाई ग्रोसरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट ऑफ द सेम अ सिंगल टू डू वेदर इट वाज ए मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज। Thus everything was very cheap there. Okay. Question number 4, what magical powers did the guru have? गुरु के पास क्या जादुई शक्तियाँ थीं? The guru could see everything in a vision, माने कि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। He could see far, वो भविष्य की बात को भी सोच सकते थे, दूर की बात को भी जानते थे। He could see the future, वो भविष्य के बारे में जानते थे। Just as the present, और
वर्तमान के समय में भी जानते थे, एंड द पास्ट और भूतकाल के समय में भी वो सब कुछ जान लेते थे। फर्दर आगे ही could appeal anywhere at any time as happened when the disciple remembered him and he appeared to save him from the stake। कहने का तात्पर्य है वो कहीं भी पहुंच सकते थे, जो भी गुरु को याद करता था गुरु वहीं उपस्थित हो जाया करते थे, और ये हुआ भी था। जब शिष्य ने गुरु को याद किया था, जब वो फांसी के फंदे पर जाने के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय गुरु प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई वॉज द डांसिंग गर्ल वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। नर्तकी उस सड़क पर क्यों आ जा रही थी? तो हो जाएगा द डांसिंग गर्ल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट बिकॉज सी हैड गिवन गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक some jewelry, but the goldsmith was busy with other work and kept on promising her to give it soon, thus amazing her walk up and down to his house a dozen times। तो इसकी हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन का है, भी दो देखते हैं। Why did the king and the minister do to change night into day and day into night। राजा और मंत्री ने रात को दिन और दिन को रात में बदलने के लिए क्या किया? तो to change night into day and day into night, the king and the minister ordered that everyone should awake at night and work as before and so to bed as soon as the sun rose। तो बहुत बड़ा ही अद्भुत लेसन है भाई। सब कुछ ऐसा हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज फूलिश अबाउट द किंग्स ट्रायल ऑफ द मर्चेंट। तो व्यापारी पर राजा के मुकदमे के बारे में क्या मूर्खतापूर्ण था? तो आंसर देख लेते हैं। A thief who had broken the wall of the merchant's house was killed due to wall of the merchant's house collapsing on his head. So the king ordered that the merchant should be punished for the thief's death. This was a foolish judgment. One who is a victim should get judgment, not punishment। You can see the Hindi of this answer। What reason, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। What reason did the Guru give to the king for dying first। गुरु ने पहले मरने के लिए राजा को क्या कारण दिया? The Guru told the king, मतलब गुरु ने राजा को बताया that कि the stake is of the god of justice and whoever dies first। मान कहने का तात्पर्य जो पहले मरता है इस फांसी में, on that stake would be reborn। मान कि जो इस फांसी के तख्ते पे चढ़ेगा और पहले मरेगा उसको पहले जन्म मिलेगा। would be reborn as the king of the country, मतलब सेम उसी कंट्री का वो दोबारा से राजा बन जाएगा, अगले जन्म में राजा बन जाएगा। whoever dies next would be reborn as the minister, मतलब जो बाद में मरेगा वो मंत्री बन जाएगा। of the country मतलब उसी राजा का उसी स्थान पे उसी देश में। that is why यही वो कारण था। the guru wants to die first, इसी वजह से गुरु जो थे वो पहले मरना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 13। तो ये जो नंबर मिल नहीं रहे हैं, मतलब बढ़ते क्रम में नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उनको हटा दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को रखा गया है। तो वाई वाज द गोल्ड स्मिथ अनेबल टू मेक ज्वेलरी ऑफ द डांसिंग गर्ल ऑन टाइम। तो सुनार नर्तकी के आभूषण बनाने पर
आभूषण समय पर बनाने में असमर्थ क्यों था? तो द गोल्ड स्मिथ वॉज अनेबल टू मेक ज्वेलरी ऑफ द डांसिंग गर्ल ऑन टाइम बिकॉज ही वॉज बिजी completing the order of rich merchant who had a wedding in his family। कहने का तात्पर्य ये है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है What appeal did the minister make to the king? मंत्री ने राजा से क्या प्रार्थना की? तो when the new stake was made ready for the execution of merchant, it was found that merchant was too thin to be properly executed on the stake. Then the minister appealed to the king that they should find a man fat enough to fit the stake। बड़ा अजीब कहानी भाई। तो यहाँ इसको देख सकते हैं, हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। गिव द करेक्ट स्केच ऑफ गुरु। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा ये बनाया गया है आंसर, और आप चाहें तो इसको हेडिंग डाल के बड़ा भी कर सकते हैं। और आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कि किसी भी छोटे आंसर को बड़ा कर देना, किसी भी बड़े आंसर को छोटा कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं। द गुरु वाज अ वेरी वाइज पर्सन हु नेवर succumbed to any temptation। He knew that the behavior of the foolish people is unpredictable। He was not greedy as he did not stay in the kingdom of fools। He was a helpful person as he saved his disciples' life when he was in danger। He was an intelligent person who had presence of mind। इस प्रकार इसकी ये हिंदी रही है, तो आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। इसका शॉर्ट लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। एक है नेम ऑल द पीपल हु वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन फॉर देयर ट्रायल। उन सभी लोगों के नाम बताइए जिन पर राजा के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, और मुकदमे का कारण भी बताइए। तो द आंसर देख लेते हैं। फॉलोइंग पीपल वर ट्राइड इन द कोर्ट्स कोर्ट। नंबर 1 द मर्चेंट, his wall fell on a thief and killed him। The bricklayer, he built a big wall which fell down and killed a thief। Number 3 a dancing girl, she was going up and down the street all day with her anklet jingling। She was young then। She distressed the bricklayer who was building the wall। Because of this, he built a big wall which fell down and killed a thief। है ना, बड़ा अजीब कहानी भाई। नंबर 4 द गोल्ड स्मिथ, he made the dancer come many times to his shop। He gave her excuse because he couldn't finish her jewelry। He had to finish the rich merchant's order because they had a wedding coming and they couldn't wait। Number 5 the rich merchant, he was tried again because his father had forced the goldsmith to complete his order first। तो इसकी हिंदी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखी है, और इसको बेहतर समझ सकते हैं। और यहाँ इसकी नृत्यांगना है, सुनार है, धनी सेठ है। इस प्रकार से हिंदी पढ़ के आप बेहतर समझ सकते हैं। और चाहें तो आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ। अपने शिष्य के जीवन को बचाने में गुरु किस प्रकार सफल हुआ। तो आप इस प्रश्न को लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसकी हिंदी भी समझ सकते हैं। ओके, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से इसको नहीं पढ़ूंगा, और आप सीधे इसके आगे भाग के देखेंगे। ट्रू फास्ट देख लेते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। तो राइट है ये। नंबर 2 इन द किंगडम ऑफ फूल्स द मैन वर्क ड्यूरिंग द डे। तो फॉल्स, द मैन वर्क ड्यूरिंग द नाइट। तो ये फॉल्स हो गया है।
नंबर 3 है द गुरु रियलाइज दैट इट वाज किंगडम ऑफ फूल्स, तो ये सही है। नंबर 4 द थीव ब्रॉक इनटू द रिच मर्चेंट्स हाउस, तो राइट है ये। नंबर 5 देखते हैं द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन द थीप्स हेड, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, ये भी सही है। नंबर 6 देखते हैं द रिच मर्चेंट पुट द ब्लेम ऑन ए ब्रिक लेयर, तो ये भी सही है। नंबर 7 द ब्रिक लेयर पुट द ब्लेम ऑन ए डांसिंग गर्ल, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। नंबर 8 द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम ऑन ए गोल्ड स्मिथ, तो ये भी सही है। और नंबर अगला देखते हैं 9 द डिसाइपल सेव्ड द गुरुज लाइफ, द डिसाइपल सेव द गुरुज लाइफ, तो फॉल्स, ये तो गलत हो गया है। गुरु सेव्ड डिसाइपल था, गुरु ने जीवन को उसको बचाया था, ना कि शिष्य ने गुरु को। और नंबर 10 देख लेते हैं द पीपल रिक्वेस्टेड द गुरु टू बी देयर किंग, तो ये भी सही है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर आपको देना है। तो द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाज, तो हो जाएगा डूडू, आंसर ये दिए भी हैं, पहले का डी है। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट, तो इसका हो जाएगा दूसरे का ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा द सेम। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाई सम, तो 3 का हो जाएगा यहाँ पे सी, फूड आइटम्स, ये 3 का सी है। नंबर 4 देख लेते हैं बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज, तो ये 4 का हो जाएगा, डी हो जाएगा विजडम। नंबर 5 देखते हैं द किंग्स वैलिप्स, तो राजा के जो कारिंदे होते हैं, सैनिक होते हैं, तो सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो इस प्रकार से ये लेसन समाप्त होता है। आशा करते हैं लेसन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है और लेसन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।